Hello, learners. In today's video, we are going to do Hamlet, a play by William Shakespeare. So, first, we will learn about William Shakespeare. From 1564 to 1660, he was an English poet, playwright, and actor. इनको इंग्लैंड्स नेशनल पोइट भी कहा जाता है एंड ब्रैड ऑफ एवन भी कहा जाता है बिकॉज ही बिलोंग टू अ प्लेस एवन इंग्लैंड में, इसलिए इनको ब्रैड ऑफ एवन कहते हैं। और बिकॉज ये इंग्लैंड के बहुत ज़्यादा फेमस पोइट थे, इसलिए इनको इंग्लैंड्स नेशनल पोइट कहते हैं। इनके वर्क्स में देर आर 39 प्लेज, 154 sonnets, 2 long narrative poem and few other verses. He was born in April 1564 and died in 1660. इनकी एजुकेशन किंग्स न्यू स्कूल से हुई थी एंड दिस स्कूल ऑफर्ड अ वेरी ग्राउंडिंग स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग इन लैटिन एंड क्लासिकल लिटरेचर एंड यू कैन सी द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल लिटरेचर ऑन शेक्सपियर. He married Anne Hathaway in November 1582 at the age of 18 and she was 26 at the time of marriage. He had three children, Suzanne and twins, Hamnet and Judith. Hamnet died in 1596. If we talk about his career, तो 1592 के तक he began a very successful career in London as an actor, writer and shareholder in the Lord Chamberlain's Men, जो बाद में जिसका नाम बदल के किंग्स मैन हो गया था जेम्स फर्स्ट के अंडर इन 1603 में. He produced most of his work between 1590 to 1613. There are some criticism on Shakespeare. Ben Jonson इनके बारे में कहते हैं कि he was not of an age but for all time. And Thomas Rhymer criticized Othello, which is a play by Shakespeare. और वो कहते हैं कि the moral of this fable is very intrusive. जोसेफ एडिसन कहते हैं among the English, Shakespeare has incomparably excelled all others. Harold Bloom, in his book The Western Canon, which was published in 1994, he wrote, Shakespeare is the canon. He set the standard for the limit of literature. Okay, now we come to the work of Shakespeare. पहले हम sonnet देखते हैं. So there are 3 sonnets by Shakespeare, famous sonnets by Shakespeare. First, shall I compare thee to a summer's day? Second, from fairest creature we desire increase. Let me not to the marriage of a true mind. Then there are some dramas by Shakespeare. So drama में we have different category for drama like tragedies, romantic comedies, histories and tragicomedy, which are late romance. In tragedy we have Romeo Juliet, Julius Caesar, Othello, Troilus and Cressida, King Lear, Macbeth. Romantic comedy में we have Midsummer Night's Dream, Much Ado About Nothing, Twelfth Night. In comedies we have The Comedy of Error, The Two Gentlemen of Verona, The Merchant of Venice, All's Well That Ends Well. In histories we have Henry VI Part 2, Henry VI Part 1, Henry VI Part 3, King John, Richard III, Richard II. In tragic comedy means late romance, we have Cymbeline, The Tempest, Winter's Tale, The Two Noble Kingsmen. Now we come to the Hamlet. So Hamlet का पूरा टाइटल जो है that is The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark. And this is the longest play by Shakespeare. ये प्ले फेमस है बिकॉज देयर इज़ अ प्ले विद इन अ प्ले, मतलब प्ले के अंदर ही आपको एक प्ले परफॉर्म होता हुआ दिखेगा. दिस प्ले इज़ ऑल्सो फेमस फॉर द सॉलिक्वी टू बी और नॉट टू बी, जो हैमलेट का एक डायलॉग है. दिस प्ले इज सेट इन एल्सिनोर कैसल, डेनमार्क. सेटिंग इसकी एल्सिनोर कैसल की है, डेनमार्क की. And some important points about Hamlet, which is Rosencrantz and Guildenstern are Dead, is a play by Tom Stoppard that features 2 minor characters, Rosencrantz and Guildenstern from Shakespeare's Hamlet. तो Shakespeare Hamlet से 2 minor character को लेके टॉम स्टॉपर्ड ने एक प्ले लिखी थी जिसका टाइटल था Rosencrantz and Guildenstern are Dead. सेकेंड, एल्फ्रेड जेरी की जो उबू रॉय थी दैट इज़ कंसिडर एज अ पैरोडी ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ एंड सम पार्ट ऑफ हैमलेट एंड किंग लियर. सो उबू रॉय में शेक्सपियर के मैकबेथ, हैमलेट और किंग लियर के पार्ट को लिया गया है, मतलब डायरेक्टली इन्फ्लुएंस दिखता है उसका. थ्री सिस्टर्स एंड द सीगल, प्ले बाय Anton Chekhov, are considered to show significant thematic connection to Shakespeare's Hamlet. शेक्सपियर हैमलेट आप देख रहे हो कि बहुत सारे इन्फ्लुएंस दिख रहे हैं आपको कि एंटोन शेकोव के प्ले थ्री सिस्टर एंड शीगल में ही सिग्निफिकेंटली कनेक्टेड द थीमेटिक
themes of his play to Shakespeare's Hamlet. तो उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की है through the theme of the play. So there are so many influence of Shakespeare's work on other writers, other playwrights and other poet. मेजर कैरेक्टर जो थे हैमलेट के, द फर्स्ट इज हैमलेट जो कि प्रोटैगनिस्ट है एंड ही वॉज द प्रिंस ऑफ डेनमार्क. सेकेंड किंग हैमलेट है जिनका रोल एक घोस्ट की तरह है एंड ही वॉज द हैमलेट्स फादर एंड ही वॉज मर्डर्ड बाय अ किंग, बाय हिज ब्रदर. देन क्लॉडियस इज हैमलेट्स अंकल जो कि मर्डर करता है किंग हैमलेट का एंड नाउ ही इज द किंग. गर्ट्यूड is the Hamlet's mother and she is the queen of Denmark. So Gertrude जो है वो हैमलेट की मदर है और वो क्वीन है डेनमार्क की, बिकॉज ये प्ले जो है वो डेनमार्क के कैसल में सेट है. देन वी हैव पोलोनियस जो कि लॉर्ड चैम्बरलिन है और ये क्लॉडियस जो कि हैमलेट के अंकल हैं उनका काउंसलर है, उनको ओपिनियंस देता है, उनको सजेशंस देता है. ओफिलिया शी इज़ द लव इंटरेस्ट ऑफ हैमलेट और ये पोलोनियस की डॉटर होती है. लैट्रस जो है वो प्लोनियस का बेटा होता है, मतलब ओफिलिया का भाई होता है. और बिकॉज प्लोनियस की डेथ हो जाती है हैमलेट की वजह से तो लैट्रस जो है वो रिविल करता है हैमलेट के अगेंस्ट. देन वी हैव हॉर्शियो हैमलेट का सबसे लॉयल फ्रेंड है. एंड वी हैव रोसेनक्राफ्ट एंड गिल्डनस्टन जिसके नाम से प्ले लिखा है टॉम स्टॉपर्ड ने. ये हैमलेट के दो बहुत पुराने दोस्त होते हैं और बाद में क्लॉडियस इनको एज अ स्पाई हैमलेट के पीछे भेजता है. फॉर्डनब्रास जो है वो बाद में व्हेन ऑल ऑफ दीज कैरेक्टर्स आर डेड इन दिस प्ले, तो फॉर्डनब्रास जो है वो बाद में किंग बनाया जाता है, प्रिंस बनाया जाता है डेनमार्क का. योरिक जो है वो हैमलेट के फादर मतलब किंग हैमलेट का एक जेस्टर होता है, मतलब काइंड ऑफ अ फनी पर्सन, फनी मैन जो जोक सुनाता रहता है उनको. Now come to the plot summary of Hamlet. So a ghost resembling King Hamlet revealed to Prince Hamlet that he was murdered by Claudius, who now wear the crown and has married Gertrude. So एक ghost starting में आपको दिखेगा प्ले के जो प्रिंस हैमलेट को ये बताता है कि आई एम किंग हैमलेट और मेरा मर्डर हो चुका है एंड हाउ आई वॉज मर्डर्ड, कि जो क्लॉडियस है जो मेरा भाई है उसने मेरा मर्डर किया है और अब वो किंग बन गया है और उसने तुम्हारी माँ से शादी कर ली, मतलब गर्ट्यूड से ही मैरिड नाउ. हैमलेट स्ट्रगल विद डाउट डिवाइसेस अ प्लान, अ प्ले विद इन अ प्ले, द मर्डर ऑफ गोंजागो दैट री-इनैक्ट द मर्डर. क्लॉडियस गिल्टी रिएक्शन कन्फर्म द घोस्ट स्टोरी. सो हैमलेट वॉज वेरी कन्फ्यूज एंड डाउटफुल कि क्या ये घोस्ट सही बोल रहा है. सो ही डिसाइडेड टू प्ले जिसका नाम होता है द मर्डर ऑफ गोंजागो. सो यहीं पे वो पार्ट है जब आपको पता चलेगा कि प्ले जो हैमलेट ऑलरेडी एक प्ले है उसके अंदर भी एक प्ले परफॉर्म किया जा रहा है, दैट इज़ द मर्डर ऑफ गोंजागो. और ये परफॉर्म करवाता है हैमलेट बिकॉज ही वॉन्ट द रिएक्शन ऑफ किंग एंड क्वीन, क्योंकि उसको लगता है कि जैसे ही वो ये प्ले देखेंगे, बिकॉज ये प्ले वैसा ही प्ले है जैसे किंग हैमलेट को मारा गया है, तो अगर ये प्ले देख के उनको सब कुछ याद आ जाएगा कि हमने भी ऐसे ही मर्डर किया है किंग हैमलेट का, तो उनके रिएक्शन से पता चल जाएगा कि इन्होंने एक्चुअली में मर्डर किया है या नहीं, या कोई और रीज़न है उनके मरने का. सो ये प्ले परफॉर्म किया जाता है इन फ्रंट ऑफ किंग एंड क्वीन विच इज़ पोलोनियस एंड गर्ट्यूड. सो क्लॉडियस के रिएक्शन से कंफर्म हो जाता है कि येस ही इज़ द मर्डरर. एंड नाउ हैमलेट हेजिटेट टू किल क्लॉडियस. वाई? बिकॉज ही रन्स बिफोर क्लॉडियस. क्लॉडियस उठ के चला जाता है ड्यूरिंग द वाइल द प्ले वॉज परफॉर्मिंग, वो उठ के चला जाता है और उसके पीछे हैमलेट भागते हुए जाता है और वो हेजिटेट करता है उसको मारने से बिकॉज ही वॉज नाउ कन्फर्म. सो ही वॉज वेरी कन्फर्म, लेकिन वो मार नहीं पाता बिकॉज देर आर 3 रीजन्स क्यों मार नहीं पाता है. बिकॉज एट दैट टाइम व्हेन ही जब वो क्लॉडियस के पास पहुंचता है तो क्लॉडियस उस टाइम पे प्रे कर रहा होता है, तो हैमलेट को लगता है कि इफ़ ही किल्स क्लॉडियस वाइल ही प्रेज, क्लॉडियस सोल माइट बी प्योरीफाइड एंड गो टू हेवन. अगर वो प्रे करते टाइम क्लॉडियस को मार देगा तो उसका जो सोल है वो प्योरीफाइड हो जाएगा और उसको हेवन भेज दिया जाएगा. तो कहीं ना कहीं ये तो गलत हुआ ना, बिकॉज ही वॉज अ मर्डरर और वो हेवन डिजर्व नहीं करता. हैमलेट फील्स दैट वुड बी एन ईजी escape फॉर क्लॉडियस, नॉट ट्रू रिवेंज. सो सिंस हिज ओन फादर वॉज मर्डर विदाउट कन्फेशन, तो क्लॉडियस को लगता है क्योंकि अभी वो प्रे कर रहा है और उसको बिना बताए अगर मैं उसे मार दूंगा तो ये तो बहुत ईजिली मर्डर हो जाएगा ना, और ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके जो पिताजी थे किंग हैमलेट उनको तो बताया गया होगा, कुछ तो कन्फेशन किया गया होगा मर्डर करने से पहले, तो अगर मैं भी ऐसा करता हूँ तो मज़ा नहीं आएगा उसको. ठीक है, तो ही डिसाइडेड कि ऐसे नहीं मार सकते.
He wants Claudius to die in the state of sin, drunk, asleep, angry or sinful, so that his punishment mirrors the crime. और वो क्लॉडियस को मारना चाहता था एक सिन के पोजीशन में, या तो वो ड्रंक हो, या वो सो रहा हो, गुस्से में हो, या फिर कोई बुरा काम कर रहा हो. अगर उस टाइम पे वो उसको मारता है तो वो पनिशमेंट एक्चुअली उस क्राइम को जो उसने किया है, जो मर्डर उसने किया है, उसको मिरर करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा. So, in the heated confrontation with Gertrude, Hamlet accidentally killed Polonius, thinking he was Claudius. So, अब क्या होता है कि while he was thinking all about this कि वो Claudius को मारे या ना मारे, तो तभी उसका एक बहुत heated argument हो जाता है Gertrude से. And during this argument, Hamlet जो है वो Polonius को मार देता है, which is the counselor of Claudius. Claudius के counselor को मार देता है Polonius को. And because Ophelia was the daughter of Polonius, so Ophelia goes mad from grief and drowned. So Latrus returned seeking revenge. So Polonius की अब डेथ हो चुकी है, एंड ओफिलिया को जब पता चलता है कि मेरे ही लव इंटरेस्ट ने, हैमलेट ने मेरे फादर को मार दिया है, पोलोनियस को मार दिया है, तो शी बिकम वेरी मैड, क्योंकि वो परेशान हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, एंड वो सुसाइड कर लेती है. वो पानी में खुद को डुबा के मर जाती है, वो सुसाइड कर लेती है. नाउ उसका जो भाई है, जो लैट्रस है, वो वापस आता है और अब वो रिवेंज लेना चाहता है हैमलेट से. सो क्लॉडियस प्लॉट्स विथ लैट्रस अ पॉइजन स्वॉर्ड एंड अ पॉइजन वाइन फॉर हैमलेट. क्लॉडियस और लैट्रस मिलके प्लान करते हैं कि हमें हैमलेट को मारना है, पर हम ऐसे नहीं मार सकते उसको, बिकॉज ही इज़ द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, तो हम ऐसे नहीं मार सकते. तो दे डिसाइडेड कि हम एक फेंसिंग मैच करेंगे, एक तलवारबाजी वाली मैच करेंगे, और उसमें हम शॉर्ड में पॉइज़न लगा के रखेंगे, और जब वो पॉइज़न से हैमलेट को मारा जाएगा तो वो उसकी डेथ तुरंत हो जाएगी, बिकॉज शॉर्ड में पॉइज़न होगा. एंड पॉइज़न वाइन भी रखेंगे, अगर वो हैमलेट वाइन भी पी लेता है तो भी उसकी डेथ हो जाएगी. सो ड्यूरिंग द फेंसिंग मैच Gertrude ड्रिंक्स द पॉइजन वाइन. Latrus wounds Hamlet but is fatally struck with the same shot. So Hamlet kills Claudius. Hamlet dies entrusting Horatio to tell his story and name the Frotibles as succession. तो इस फेंसिंग मैच के टाइम पे Gertrude जो है वो उस पॉइजन वाइन को पी लेती है. मतलब हैमलेट की जो मदर है, जो क्वीन है डेनमार्क की, वो उस वाइन को पी लेती है. एंड लैट्रस जो है हैमलेट को मारना चाहता था उस शॉट से, उसको भी वो शॉट लग जाती है और उसकी भी डेथ हो जाती है. एंड ऑफ कोर्स हैमलेट को भी शॉट लगती है, एंड शॉट से हैमलेट की भी डेथ होती है, पर हैमलेट मरने से पहले क्लॉडियस को भी मार देता है उस शॉट से. सो इवेंचुअली हैमलेट भी मर जाता है, क्लॉडियस भी, लैट्रस जो कि ओफिलिया का भाई होता है, एंड गर्ट्यूड, ये चारों के चारों उस फेंसिंग मैच के टाइम पे उनकी डेथ हो जाती है. नाउ बिफोर डाइंग हैमलेट जो है वो होर्शियो से कहता है कि मेरी कहानी तुम सबको बताना, मतलब मैंने कैसे, मेरी डेथ कैसे हुई और बाकियों की डेथ कैसे हुई, ये सब बताने की जिम्मेदारी बाकी लोगों को तुम्हारी है. एंड फोर्टिनब्रास जो है उसको वो डिक्लेयर करता है कि तुम अब से प्रिंस हो डेनमार्क के. Okay, so this is how the play ends, and some important quotation from this play. So first is, to be or not to be, that is the question, by Hamlet. This is a dialogue by Hamlet. Second, Marcellus, one of the guard of Denmark's castle. Something is rotten in the state of Denmark. So these are two important quotations from Hamlet, the play. And that's all. If you have any query, any doubt about this topic or any other topic, you can comment below. And have a nice day.